हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब कैब एग्जाम्स। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, रिटेल बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इस फोर्थ पेपर की अगर हम बात करें तो सबसे इजी टॉपिक जो है वो रिटेल बैंकिंग का हमारा बनता है। बट स्टिल वी नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। तो आज के इस हमारे सेशन में थोड़ी बहुत मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि एग्जैक्टली रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ यू दोज हु आर, ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग इन अ बैंक, सो यू पीपल नो मच बेटर अबाउट दिस products. But for the exam point of view, where they ask the question which topics are important, so that overview I am going to give you regarding the retail banking products in this particular small session. Again, before going to start this session, this is a Telegram group from where you can follow us. You can be the part of our whole this jab journey. So all types of notes, PDFs, any kind of doubt solving will be available for you. Okay. Now, guys, we are starting our batch. So for the November 2025, we are already started with the batch, and in that batch, you are going to get the information. You are going to get the proper study notes. You are going to get the live classes, memory based tests, subject based modules regarding RBWM. So if you want to go for this, you can enroll into this. PUSHPAK is a coupon code जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. And if you want to go for the all the subjects like AFM, PPB, IFS, IE or RBWM, so all the batches are available. Lectures of PPB is already started, so if you want to enroll, you can enroll into these batches. Okay, I'll start with the session. Now, retail banking. Everyone knows about the retail banking products. So retail banking refers to the banking services offered directly to the individuals. Like we have the wholesale banking, we have the retail banking. The focus on retail banking is more because huge business, especially liquid currency or the liquid money will be available in a very bigger quantity, और काफी बड़ा business retail banking से आता है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा होता है. हाँ, efforts for retail banking there are more efforts, okay, but money is also very huge level over here. So when it comes to the products of the retail banking, obviously deposit products are there, also called as the liability products, and the loan products, also called as the asset products of the bank. इन दोनों की हम लोग usually बात करते हैं. Now, when it comes to liability-based products, we know that there are two types of major deposits we have. One is called as a demand deposits concept. Another is called as a term deposit or the time deposit concept. And this particular thing is called liability. The reason is that, of course, customers are keeping money with us, so we need to we need to give the proper attention to that. We need to pay the interest on that. There should not be any kind of problem. तो यही फैक्टर यहाँ पे रहेगा. So demand deposit and the time deposit, ये दो concepts की हम लोग हमेशा बात करते हैं. They become the liability. Now, under demand deposits, we have the current account and the saving account, very famously called as a CASA. The CASA rate should be good because liquidity काफी अच्छी बनी रहती है. Time deposits, the recurring accounts, and the we call as a then we have these fixed deposits called as a RAFA. RAFA is also useful, especially when it comes to the our long-term funding pattern. So ये दो चीजें जो हमारे लिए काफी क्रूशियल रहती है. तो let's talk about saving account. टारगेट ग्रुप हमारा सैलराइड इंडिविजुअल्स रहेंगे, स्टूडेंट्स, पेंशनरीज, ये यूजुअली टारगेट ग्रुप हमारा रहेगा फॉर सेविंग अकाउंट के. इंडिविजुअल बेस्ड अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे. लो मिनिमम बैलेंस. नाउअडेज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगर आपको पता होगा, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई, कैनरा बैंक, शायद आप भी उनमें से किसी बैंक में काम कर रहे होंगे. दे डिसाइडेड नॉट टू इम्पोज एनी काइंड ऑफ पेनल्टी on this low minimum balance concept. So there are 0 rupees account, okay, no frill account we usually call as, and there are some low balance account, okay, low minimum balance account. But sometimes the PSBs which they have recently announced that there won't be any kind of penalties on that, so that is another interesting factor. They are the interest bearing account because current account के ऊपर interest आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 2.5 to 4%, but it varies, okay. जैसे अभी रेपो रेट कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट और थोड़े कम हो जाएंगे कि जो ओवर द पीरियड होता है, बट एवरी बैंक हैव देयर ओन वेज टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट्स. देन एटीएम, चेकबुक, नेट मोबाइल बैंकिंग, ऑल दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल. रेगुलर सेविंग्स के लिए काफी बेटर होता है और मनी फ्लो रखने के लिए. सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. देन करंट अकाउंट की बात करेंगे तो बिजनेस फर्म्स, कंपनीज, इवन इंडिविजुअल्स कैन ओपन, बट दोज हु आर रनिंग द बिजनेस. अगर किसी इंडिविजुअल का अपना थोड़ा सा किराना दुकान होगा के और वो अपने ही नाम पे बिजनेस कर रहा होगा, तो उस नाम पे भी आपका करंट अकाउंट क्रिएट हो सकता है. यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पेड नहीं होगा, कि डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं रहेगी, और
यहाँ पे मिनिमम बैलेंस का रोल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हायर मिनिमम बैलेंस रखने की कई बार बात की जाती है, तो ये एक फैक्टर यहाँ पे रहेगा। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन वाला अकाउंट है, इसके ऊपर इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वी ऑल नो अबाउट दैट। देन आरडी, आरडी इज अनदर वेरी वेरी फेमस कंसेप्ट इन आवर कंट्री। RD concept you can not only find with the scheduled commercial banks, you can also found with the NBFCs, because NBFCs depositing in NBFCs are allowed to accept the time deposit or the term deposits, तो ये कंसेप्ट आपको वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पे है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ स्मॉल रेगुलर सेविंग्स के की बात होती है, मिनिमम 50 रुपीज का भी हम आप रख सकते हो, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, वो हर बैंक टू बैंक वैरी करेगा। एंड एक सर्टन जैसे क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, एक सर्टन पीरियोडिक तरीके से, मंथली बेसिस पे पीरियोडिक तरीके से आप इसमें अपना पैसा डाल सकते हो। देन फिक्स डिपॉजिट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट, वन इज अ शॉर्ट टर्म, अनदर इज अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे तो 7 days टिल 1 year, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट आपके 10-10 साल के लिए भी बन सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के अंदर अर्बन रूरल एरिया दोनों के लिए अलग अलग लिमिट्स हमारे पास होती है, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। Look, through this sessions, obviously we are just going to take the overview of different things. हम हर अलग चीज का ओवरव्यूज ले रहे हैं। डिटेलिंग ऑफ कोर्स हमारे बैच के अंदर हम आपके साथ और डिटेल में बात करेंगे कि चीजें एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास इस सारे चीजों के बारे में होते हैं। Now, when it comes to loan products, also called as the asset products, so we have different type of loans: secured, unsecured, working capital based loans, as well as this capital loans. So there are different types of loans we have. So the loan products, आपके लोन प्रोडक्ट्स क्या है, तो ये लोन प्रोडक्ट्स है बेसिकली, दे आर नॉट द टाइप्स ऑफ द लोन, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लोन्स। समटाइम्स दे डू आस्क क्वेश्चन लाइक दैट, एंड इवन दो यू आर वर्किंग इन द बैंक, बट गलतियां बहुत बार हो जाती है कि हम लोन प्रोडक्ट को लोन टाइप समझ लेते हैं, तो होम लोन होगा, कार लोन होगा, आपका जो भी है, दे आर ऑल आर द लोन प्रोडक्ट्स। नाउ मेजॉरिटी क्वेश्चंस व्हेन दे आस्क इन द एग्जाम, sometimes they ask about this tax benefit. This is a major and the most important for our exam point of view. Our exam point of view, this tax benefit point is really very important. Many of the times we saw that they ask question about this tax benefit on certain loan. Home loan of course attracts a huge tax benefit concept. Then mortgage of the properties, another major factor over here. Mortgage of the property, like there are types of security because it's a secured loan. When it comes to secured loan, there are types of securities like pledge, lien, hypothecation, mortgage, assignment. So it's a mortgage जो आपके प्रॉपर्टीज पे या आपके होम लोन के ऊपर आपको यूजुअली देखने को मिलेगा। देन वी कम टू द ऑटो लोन। ऑटो लोन अगेन यहाँ पे आपको हाइपोथेकेशन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑटो लोन, ऑटोमोबाइल लोन इज नॉट attracting any kind of tax benefit. The hypothecation is a type of security which we normally saw over here. Then personal loan. Personal loan is one of the unsecured loan. अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा रहेंगे, इंटरेस्ट विल बी मच बेटर। एंड these loans, while giving these loans, of course CIBIL score, salary, employment stability, many factors they do check, many factors they do observe, and depending on that थोड़ा लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा पर्सनल लोन की अगर हम बात करें। देन वी कम टू द एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन अगेन इट हैविंग द टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट होगा। अब एजुकेशन लोन में दो तीन चीजें होती है। समटाइम्स एजुकेशन लोन में आप कुछ मॉर्गेज रख सकते हो या कुछ सिक्योरिटी रख सकते हो। समटाइम्स विदाउट सिक्योरिटी भी एजुकेशन लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके ट्यूशन फी, बुक्स, लिविंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपकी कवर करेगा। एंड इसका जो पीरियड है, रीपेमेंट है, वो रीपेमेंट आपके कोर्स के बाद, तो इसका मोराटोरियम पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड दैट्स व्हाई लिटिल बिट difficult for banks sometimes, because the income will come after few years जब कोर्स पूरा हो जाएगा, बट इट अट्रैक्ट्स टैक्स डिडक्शन। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देन कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल लोन्स की बात करेंगे, ये एक बड़ा ही कंसेप्ट आजकल बहुत चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल है, पेपर वर्क बहुत कम होता है, आपको ऑनलाइन ही लोन मिल जाएगा। सम ऑफ द एनबीएफसी प्रोवाइडिंग 0% इंटरेस्ट इसके ऊपर, इवन क्रेडिट कार्ड ऑफ योर बैंक्स माइट बी प्रोवाइडिंग 0%। सो ये आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं, 6 months, 7 months, 1 year, बहुत हो गया 2 साल, नॉट मोर देन दैट। तो कंज्यूमर लोन्स आपके यूजुअली उतने टाइम में खत्म हो जाएंगे, दे आर वेरी वेरी फेमस एंड पीपल आर यूजिंग इट अ लॉट। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी इससे काफी बढ़ जाती है, तो बैंक्स इसको आजकल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है।
सो बेसिकली जब हम रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो these are the products they talked about. Usually they talked about these products and usually they ask about the question about these products. Of course we will talk about this in much in detail, much in detail with MCQs in our sessions, but ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा. ओके, अगर हम जैब एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे इसके फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कस्टमर स्टेबिलिटी क्या है, ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं. देन रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, यहाँ पे भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं. एंड एक ये फैक्टर बैंकिंग के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो आरबीआई के कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, उसके ऊपर बात की जाएगी. अगर एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड एक फैक्टर है, टेन्योर इंटरेस्ट पैटर्न अनदर फैक्टर, टैक्स बेनिफिट में तब से बोल रहा था एक अनदर फैक्टर, एंड लायबिलिटी वर्सेस एसेट प्रोडक्ट्स डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत सिंपल है, एवरीवन कैन इजीली आंसर अबाउट दिस. तो यही सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी थी. So that's all from this topic. We'll see you in the next topic. Till that time, bye bye. Take care.